وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے اسلامی بھائی، آج کا یہ ویڈیو خاص کر کے میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ ضروری باتیں ہمیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس جیسے وبا سے جھوجھ رہی ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا عجب حال ہے، افراتفری کا ماحول ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، اور ایسے عالم میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، جس سے لوگ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی پریشانی ہمارے آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے ہیں۔ جہاں مسجدوں میں جا کر نماز پنجگانہ ادا کرتے تھے، آج ہم اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں، جو جہاں ہے وہیں نمازیں پڑھیں، ایک دوسرے سے نہ ملیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں، ایک دوسری جگہ پہ نہ جائیں۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں۔ تو حضرات، ایسے ماحول میں رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے آپ کے بالکل قریب ہے، تو ایسے میں نماز تراویح کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم نماز تراویح سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نماز تراویح کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور 5 وقتہ نماز کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ تو 5 وقتہ نماز کے حوالے سے ہمارے مفتیان کرام نے ہمیں آپ کو یہ راستہ بتایا ہے کہ آپ 5 وقت اپنے گھر پہ پڑھیں، تنہا پڑھیں یا پھر ہو سکے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ اس وقت میں گھر میں بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب کہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے میں ملتا ہے یا ملے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ مجبوری ہے، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، مسجد میں اکٹھا ہو نہیں سکتے، اس لیے وہ ثواب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہم سب کو گھر میں بھی پڑھ کر کے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو مسجد میں پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو اب حضرات، نماز تراویح کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نماز تراویح کیسے پڑھیں گے، کیسے ہوگی، کیا کرنا ہوگا، کیا مسجد میں ہم نہیں پڑھ سکتے، گھر میں کیسے پڑھیں گے۔ تو حضرات، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نماز تراویح یقینی طور پر شریعت نے تراویح کی نماز کو ہر مسلمان مرد عورت پر لازم قرار دیا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، مردوں کو بھی پڑھنی ہے۔ اور رہی بات مسجد میں تراویح تو ہو نہیں رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے ہمیں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس طرح نماز پنجگانہ گھر میں پڑھتے ہیں، اسی طرح تراویح کا اہتمام بھی ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، آپ چاہیں تو اگر کوئی پڑھانے والے ہوں گھر کے افراد میں سے کوئی، تو آپ کوئی ایک خود ہی امام ہو جائیں اور گھر کے باقی لوگوں کو مقتدی بنا دیں، اور صف بنا کر کے اطمینان کے ساتھ آپ تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ 20 رکعت تراویح۔ حناف کے نزدیک 20 رکعت تراویح میں آپ کو ادا کرنی ہے، جماعت سے کر لیں تو بھی بہتر ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو تنہا بھی تراویح کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اگر تنہا پڑھیں یا گھر میں پڑھیں تو ہم کیسے تراویح پڑھیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو 30ویں پارے کی 10 سورت اگر یاد ہے، جو الم تر کیف فعل یعنی سورہ فیل سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس تک 10 سورت ہیں، اگر یہ 10 سورت اگر کسی کو یاد ہو تو آپ آسانی کے ساتھ ہر رکعت میں ایک ایک سورہ کر کے پڑھتے چلے جائیں گے،
तो 10 रकत में आपको ये सूरह नास तक हो जाएंगे। फिर दोबारा से आपको सूरह फील यानी अलम तरा से शुरू करना है। इसके बाद फिर एक एक रकात में एक एक सूरह पढ़ते पढ़ते सूरह नास तक पहुँचना है। ये 2 बार आप करेंगे तो 20 रकात आपकी नमाज। ये तो मसला हुआ कि जिसको 10 सूरत याद है उसके लिए, और अगर किसी को 10 सूरत नहीं बल्कि 2 ही सूरत याद है, छोटी छोटी सूरतें याद हैं, तो भी तरावी की नमाज आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इसकी सूरत क्या होगी? इसकी सूरत ये होगी कि आपको 2-2 रकत करके तो 20 रकत पढ़नी है। 2 रकत की नियत आप करेंगे। पहली रकत में आप सूरह फातिहा पढ़ें, फिर जो सूरह आपको याद है उसको पढ़ें, रुकू सजदा करें, फिर खड़े हो जाएं, फिर दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें। इसके बाद फिर जो सूरत आपको याद है तो फिर रुकू सजदा करेंगे, 2 रकत हो जाएगी। इसी तरह 2-2 रकत करके हर रकत में वही सूरत को आपको पढ़ना है, वही 2 सूरत को, और इस तरह करके आप 30 रकत बआसानी पढ़ सकते हैं। और तरावी की जो फजीलतें हैं, जो इसके सवाब हैं, वो मुकम्मल आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन खुदारा आप इसमें ये गलती ना करें कि घर में ही पढ़ना है तो चलो कम से कम अगल बगल के लोगों को लेकर के हम बैठ जाएँ और 10-15 आदमी 20 आदमी जमा होकर के एक जगह घर ही पर पढ़ लें। तो ये शरीयतन तो जायज़ आप कर सकते हैं, लेकिन कानूनन जुर्म हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान है आपको पता है कि आप दूसरे घर में जा नहीं सकते, दूसरे के घर के लोगों को अपने यहाँ बुला नहीं। आप अपने ही घर में रहें, हर कोई अपने ही घर में रहे और इबादत भी अपने घर में रह करके अपने लोगों ही में करें। बाज़ लोगों का ये ख्याल हो रहा है, जैसा कि मुझे पता चला है कि लोग ये चाह रहे हैं कि हम हमारे घर में 10 फैमिली अगर हैं, 10 मेंबर हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि हम किसी हाफिज़ को बुला लें और अपने कुरान सुनने तरावी में। देखिए, मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ ये कहूँगा कि इस तरह भी करना कानूनी जुर्म होगा, इसलिए कि 10 आदमी आप तो अपने घर के हैं, लेकिन एक हाफिज़ जो आप बुलाएंगे तो वो तो दूसरी जगह के होंगे। अगर ये ख़बर भी प्रशासन को पहुंच गई तो यकीनन आप पकड़े जाएंगे और जितने लोग मौजूद होंगे सबों पर केस भी दर्ज हो सकता है, मुजरिम तो करार दिए जाएंगे, पकड़े भी जाएंगे। ये ऐसी गलती भी हमें आपको नहीं करनी है। भी बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, नाजुक वक्त चल रहा है, ख़ास करके मुसलमानों के हवाले से। इसलिए हमें मुकम्मल तौर पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें तरीक़ा आया है, इसी तरीक़े पर हमें अपने घरों पर रहनी है और इसी तरीक़े पर हमें इबादत भी करनी है। आप ये ना सोचें कि अपने कुरान अगर नहीं कुछ सुन सके, नहीं कर सके तो हमें बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, हमारे साथ मजबूरी है, इसलिए हम अपने कुरान ना करके अगर सूरह तरावी में भी अगर काम चला लेते हैं, ये भी हमारे आपके लिए बेहतर है। इसलिए खुदा के वास्ते भीड़ इकट्ठा ना करने की कोशिश करें। जितने अफराद हैं उसी में से आप पढ़ लें और सब्र के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका वही पढ़ना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो हमारे आपके लिए ज़रिया निजात भी हो जाएगा। और हज़रात देखिए, अभी मुश्किल वक्त ये है, मुश्किल वक्त जो आता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, चाहे जिस तरह की भी घड़ी हो, मुश्किल की घड़ी हो या खुशी की घड़ी हो, वो कुछ दिनों के लिए होता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, कि बेशक सख्ती के साथ आसानी है। अभी सख्ती आई है, अभी मुश्किल आया है, यकीनी तौर पर आप समझ लें कि आसानियाँ आएंगी, ये परेशानियाँ दूर होंगी, ये वबाएँ दूर होंगी और हम फिर से उसी तरह से जिस तरह पहले थे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा हम उसी तरह से आबाद भी हो जाएंगे और खुल करके इबादतें भी करेंगे और दुनिया के और भी जो काम है वो सारा कुछ हम करेंगे। लेकिन जब तक अभी हमारे पास हमारे साथ ये जो मामलात हैं, इस पे हमें आपको सख्ती के साथ पाबंदी करनी है और पाबंदी के साथ सारा अमल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई हरकत, हमारा कोई अमल ऐसा हो जो गवर्नमेंट के नज़र में जुर्म हो और हम उसमें पकड़े जाएं और मज़ीद परेशानियों का सामना हमें करना पड़े और हमारे साथ साथ दूसरे इस्लामी भाइयों को भी, दूसरे मुसलमानों को भी इसकी बदनामी झेलनी पड़े और इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़े। हमें चाहिए कि हम ऐसा काम खुद ना करें जिससे हम खुद भी परेशानी में पड़ें और दूसरे लोग भी हमारी वजह से परेशानी में पड़ जाएं। मेरी ये गुजारिश है कि आप इन बातों को ख्याल रखें, अपने घरों में इत्मीनान के साथ आप रोज़ा भी रखें, इफ्तार भी अपने घरों में करें, 5 वक्त नमाज जमात के साथ भी पढ़ें, तरावी भी घर में चाहें आप पढ़ें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें। इसलिए कि ये मौका आप ये कह लीजिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि हम मुसलमानों के लिए एक रहमत है।
रहमत है हम मुसलमानों के लिए, इसलिए कि मुसलमानों को अगर कोई परेशानी भी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी के सबब एक बंदे मोमिन के गुनाह को मिटा दिया करता है और उसे उसके बदले नेकी अता करता है। ये परेशानी आई है, यकीनी तौर पर हमें और आपको इस परेशानी के इस्तकबाल करते हुए सब्र व शुक्र के साथ अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का मौका हमें मिला है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, उसे राज़ी करने की कोशिश करें और ये एक मौका है कि हम इसी बहाने 24 घंटे घर में रह करके अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल में ढाल सकें, घर के अपने बच्चों को दीनी तालीम और नमाज वगैरह से, कुरान वगैरह से जोड़ने का हमें हमारे और आपके लिए हसीन मौका है। हम खुद अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तौर पर कर सकते हैं, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद भी बना सकते हैं, कुरान की तिलावत करने का शौक़ भी पैदा करवा सकते हैं, बशर्ते कि हम खुद अपने घर में रह करके पाबंद हो जाएं, नमाज के भी पाबंद हो जाएं, कुरान की तिलावत के भी पाबंद हो जाएं। देखिए कि आप जब करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके घर के बच्चे भी आपको देख करके सारे अमल करेंगे और आपका घर यकीनी तौर पर एक इस्लामी माहौल का गहवारा बन जाएगा और घरों में खुशहाली आएंगी। उसके बाद फिर जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, बीमारियां ख़त्म होगी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल एक अच्छा माहौल, इस्लामी माहौल में बदल चुका होगा। इसलिए आप कोशिश करें और इस मौके को गनीमत जानते हुए, गनीमत समझें, गनीमत जानें और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। और ये रमज़ान का मौका वैसे भी हमारे लिए बड़ा बरकतों वाला महीना है, अज़मतों वाला महीना है। इसमें हम जितना ज़्यादा इबादत कर सकें अल्लाह की, वो हमारे आपके लिए बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आने वाले रमज़ान की बरकतों से मालामाल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, खूब तिलावत करने का शौक़ दिल में पैदा फरमाए और खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।